Hello student, how are you? I am Jasmine Faraz. Again welcome you my channel. I hope मेरे previous video आपने देखे हैं because आज हम second problem मूव करने वाले हैं. This is a textbook problem, unsolved problem, second one. See, read the balance sheet. Balance sheet of Ram, Sham and Ghanshyam sharing ratio 3 is to 2 is to 1. So always make a habit. Just it's highlighted 3 is to 2 is to 1. Their balance sheet as on 31st March 2019. They have debtors, building investment. They have bills payable, creditors and loans. So this is basically their balance sheet. These are the adjustment. So without wasting much time, we'll directly come to the problems. Here we have to open accounts, profit and loss adjustment account, partners capital account and the balance sheet. So let's start with the asset. It's just like admission of partner, copy and the paste. So we'll do bank 54,000, debtors, building and the investment. All are we supposed to write inner column because they have given adjustment. Now we'll move to the liability side. Creditors, bills payable and loan. तीनों को भी एडजस्टमेंट नहीं है, so we directly write outer column. The capital will go partners capital which side? Of course liability means credit side, so this will go partners credit side. See here. So posting is very easy, just we need to do copy and the paste. Now we'll move to the adjustment. The first adjustment is given building an investment to be appreciated by 5% and the 10%. So building and investment. So let's find where is the building and the investment. See, building and investment. What they have given? Appreciated. So building will be appreciated by 5% and investment will be appreciated by 10%. So see here, building 5%, 6,000 ka 5% comes 3,000 and appreciation always add. So add here. The same about investment, appreciation 10%. So 1,50,000 ka 10%, it comes 50,000. We need to add here. See here, I put here sign. So this we add. So now second effect will go. This is appreciation. That means this is a good thing, income for the firm. So we'll write profit and loss credit side. ठीक है, कितना एप्रिसिएशन हुआ है वही हमें लिखना है. बिल्डिंग 3,000 से वैल्यू बढ़ चुकी है और इन्वेस्टमेंट की 15,000 से वैल्यू बढ़ चुकी है. सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट फॉर्मूला से डेबिट द expenses and credit the income. So we'll write income side. Now provision for doubtful debt is created 5%. So 5%, 90,000 ka 5% it comes 4,500. So RDD always minus, it's 85,500. Now second effect. Second effect क्या होगा हमारा? सो ऑफ कोर्स द आरडीडी इंक्रीज. पहले इसमें आरडीडी दी नहीं थी, अभी उन्होंने क्रिएट किए तो पूरा के पूरा लॉस है 4,500. अगर आप आपकी बैलेंस शीट देखोगे तो बैलेंस शीट में आपको पता चलेगा कि वहां पे सिर्फ आरडीडी उन्होंने कितनी दी थी. सी 90,000 ही दी थी. सॉरी, डेटर्स 90,000 ही दिया था, आरडीडी थी ही नहीं, तो इन्होंने यहाँ पे नई क्रिएट की तो पूरा के पूरा लॉस हो गया ये. So this will go debit side. Done. Now we'll move to the next. Provision. अभी हमने last problem में ही देखा था. Provision. Provision means this is a liability. They have to pay in future. आउटस्टैंडिंग सैलरी. देखो आपको अगर याद रहेगा, मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा फर्स्ट प्रॉब्लम, तो उसमें लिखा था प्रोविजन फॉर अ कॉम्पेंसेशन. अब ये कॉम्पेंसेशन की जगह पे सैलरी वर्ड यूज किया है, आउटस्टैंडिंग सैलरी. दैट मीन्स कभी ना कभी उन्हें ये 3,000 क्या करने हैं? पेड करने हैं. सो फ्यूचर में पे करना है, दैट मीन्स लायबिलिटी. सो फर्स्ट इफेक्ट विल गो बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड एंड नेक्स्ट नाउ दिस इज एक्सपेंसेस फॉर द फर्म. सो दिस विल गो डेबिट साइड. सेम अगर आप पहला प्रॉब्लम देखोगे तो सेम ही है, सिर्फ नाम बदला है. यहाँ पे कॉम्पेंसेशन की जगह पे यहाँ पे सैलरी आया है, अदरवाइज इफेक्ट्स आर द सेम. Now over we finish building provision. This is also finished. Yes, now goodwill is valued. Now in earlier video I said whenever valued given, that means raise. गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल, टोटल फर्म की गुडविल कितनी थी? 90,000. पार्टनर डिसाइडेड गुडविल शुड बी राइट ऑफ, मतलब रिवर्स एंट्री करनी है. चलो देखते हैं एंट्री कैसे करनी है गुडविल रेज. सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल,
टू श्याम कैपिटल टू घनश्याम कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नहीं बोला है कि सिर्फ जो रिटायर हुआ है घनश्याम उसकी ही गुडविल रेस करो। पहले वाले प्रीवियस वाले सब में देखो कहा था कि ओनली काका शेयर गुडविल, बट दे हैव नॉट मेंशन हियर। सो जब मेंशन नहीं किया तो पूरे फर्म का गुडविल हमें क्या करना है, रेज करना है। एंड इमीडिएटली दे हैव गिवन राइट ऑफ, तो राइट ऑफ के लिए क्या करना है, रिवर्स एंट्री करनी है। अब गुडविल जो डेबिट है वो नेक्स्ट गुडविल क्या आएगा, क्रेडिट, और ये जो पार्टनर्स क्रेडिट है वो नेक्स्ट एंट्री में डेबिट। यस, लेकिन अब उसमें घनश्याम का नाम नहीं आएगा बिकॉज गुडविल राइट ऑफ बाय कंटिन्यू पार्टनर। सो सी राम अकाउंट डेबिट, श्याम अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है, ये टोटल एंट्री हमें क्या करनी है, रिवर्स करनी है। सिर्फ रिवर्स करते वक्त इतना ध्यान रखना है कि अब घनश्याम का नाम यहाँ पे नहीं आएगा। डन। नाउ देखो गुडविल यहाँ से डेबिट से, सी गुडविल डेबिट यहाँ पे 0 अमाउंट बच जाता है बिकॉज रूल क्या होता है हमारा, डेबिट माइनस क्रेडिट। तो गुडविल कहीं लिखने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट 0 ही है। ठीक है, अब हमें एंट्री क्या करनी है, इसमें एंट्री करनी है। तो ये तीनों किधर जाएंगे, क्रेडिट में दिया है, सो दिस विल गो क्रेडिट साइड। और ये कहाँ पे दिया है, डेबिट में दिया है, सो दिस विल गो डेबिट साइड। ओके, सो चलो नाउ दिस थ्री अमाउंट्स विल गो क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड। आपके सामने ही मैं लेकर आई हूँ एंट्री, फिर मतलब आपको कंफ्यूज ना होगा, ये तीनों यहाँ पे जाएंगे। सी, ठीक है, 45,000, 30,000 एंड 15,000 बिकॉज दिस कम्स क्रेडिट साइड। सिर्फ हमें इन केस में गुडविल का नाम लिखना है और गुडविल केस में पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, सो दिस इज ओवर। ये तो इसका तो इफेक्ट नील हो गया, डेबिट माइनस क्रेडिट, तो ये सवाल ही नहीं, ये हमने अभी किया। अब ये क्या है, डेबिट में, तो पार्टनर्स के डेबिट में विल राइट, बट विल राइट ओनली राम एंड श्याम्स कॉलम, नॉट घनश्याम कॉलम। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया है। ये दो एंट्री आपको रिटायरमेंट में करनी है तो ये याद रहेगी, इजी है, दो ही एंट्री और ऑलरेडी हमने ये पार्ट एडमिशन में देखा है। सो नाउ विल मूव द अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। लास्ट वीडियो में मैंने बताया है दे हैव 3 ऑप्शंस। अब कोई रिटायर हो रहा है तो उसका जो भी हिसाब किताब रहेगा वो उन्हें पे करना है। तो उनके पास 3 ही रास्ते हैं, एक तो पूरी कैश दे दो उसको और उसको टाटा बाय बाय करो, नहीं तो आधी कैश और आधा लोन, नहीं तो अगर कैश नहीं है तो उन्हें क्या करना है, पूरा के पूरा लोन में ट्रांसफर करना है। ठीक है, और डोंट वरी, क्वेश्चन में अच्छे से क्लियर कट दे देते हैं उन लोग कि तुम्हें क्या करना है। सो विल मूव, लेकिन ये फाइंड आउट करने के लिए हमको अकाउंट क्लोज करना है। सो अकाउंट क्लोज कर दो। सी दिस साइड हेवी कम्स, सो सी हियर 18,000, इसमें से माइनस किया ये तो it comes 10,500. We have to divide among these 3 partners. फिर एक बार बताती हूँ, एडमिशन में 2 ही पार्टनर्स को हमें डिवाइड करना होता है, लेकिन रिटायरमेंट में 3 पार्टनर्स को करना होता है। क्यों, क्योंकि एडमिशन में भी वही रूल है, दिस वी हैव टू डिवाइड अमंग द ओल्ड पार्टनर। सो एडमिशन में तो ओल्ड पार्टनर 2 ही होते हैं और यहाँ पे कितने होते हैं, ओल्ड पार्टनर 3 होते हैं। ये तो अब जाएगा लेकिन फिलहाल तो है ना वो, सो ये हमसे देंगे तो उसका हिसाब भी हम करेंगे। सो डिवाइड अमंग द पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो नाउ इट्स टाइम टू क्लोज। हमेशा पहले जो रिटायर होता है उसका ही पहले बंद करो। सी, इसका मतलब क्या है, घमश्याम का कैपिटल फर्म को वापस देना है, गुडविल का हिस्सा उसे देना है, एंड प्लस ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट, ये जो प्रॉफिट हुआ है उसका हिस्सा देना है। तो फर्म को टोटल कितना पेमेंट करना है घनश्याम को, 76,750। बट दे डोंट हैव दैट मच कैश, तो उन्होंने बोला भैया जो भी है लोन से पे कर दो। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे 2 लोन लिखा है और ट्रांसफर कर दिया है, ये जाएगा लायबिलिटी साइड, जैसे हमने काका को किया था फर्स्ट प्रॉब्लम में। नाउ श्याम और राम को भी क्लोज कर दो। सी, श्याम का भी टोटल यहीं पे आ रहा है, राम का भी टोटल कहाँ आ रहा है, यहीं पे आ रहा है। सो दे आर कंटिन्यू पार्टनर, ये तो है फर्म, ये नहीं लेफ्ट कर रहे हैं, तो उनका बैलेंस क्या लिखोगे, कैरी डाउन एंड हियर लोन। सो विल ट्रांसफर हियर राम एंड श्याम एंड हियर विल राइट घनश्याम लोन। ये दोनों को ऊपर अलग से क्यों बताया, बिकॉज दे अभी भी दे आर द पार्टनर्स, बट यहाँ पे क्या किया है हमने, लोन इसको ट्रांसफर किया, दैट मीन्स फर्म विल पे 76,750 टू द घनश्याम, जैसे जैसे पैसे आएंगे फर्म पे करेगी। ओके, सो सेम यो टैली। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो हैव अ नाइस डे,
स्टे होम, स्टे सेफ, कमेंट्स लिखो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करो, क्योंकि मैं जल्दी ही आपके लिए बोर्ड का एक प्रॉब्लम, ये लास्ट ईयर का बोर्ड का प्रॉब्लम एक लेकर आऊंगी कि कैसे पूछते हैं उन लोग। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।